یاد رکھو، خواہش اینٹی لائف چیز ہے۔ جس بھی چیز کو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں کل ملے، جس کی بھی تم کل پانے کی خواہش کرتے ہو، وہ تمہارے آج کو برباد کر جاتی ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز جب کل تمہیں ملے گی تو تم اس سے لطف لینے کو اس وقت نہیں ہوگے، بلکہ تم کسی اور کل میں کچھ اور کی خواہش لے کر اس وقت کے آج کو برباد کر رہے ہوگے، کیونکہ کل کی عادت جو تم بنا چکے ہو وہ کل بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگی جیسے آج ہے، کیونکہ کل جب آتا ہے تو وہ آج ہوتا ہے، اور آج کو جینے کا تمہیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ آج کو جینے کی تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تمہاری مسلسل عادت ہے کل میں رہنے کی، کل میں جینے کی۔ آج کو تم جیے ہی کبھی نہیں۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے، کبھی اس پر غور کرنا۔ جب بھی کل آتا ہے وہ آج ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آج ہوگا تم اس سے انکانشیس ہو جاؤ گے، بے ہوش ہو جاؤ گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ کل جو آج ہو گیا ہے اس کا برسوں تم نے انتظار کیا ہو۔ کبھی غور کیا؟ بچے سالوں میں انتظار کرتے ہیں بڑے ہونے کا، اور کتنی شدت سے انتظار کرتے ہیں، کتنی چاہ ہوتی ہے انہیں بڑا ہونے کی۔ نکلی داڑھی مونچھیں لگا کر ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر قدم آپتے ہیں۔ وہ بڑے ہونے کی اپنی خواہش میں پاگل ہوتے ہیں، مگر آج جب وہ بڑے ہو گئے تو سوچ سکتے ہو تم کہ وہ اس کو کتنا انجوائے کرتے ہوں گے۔ نہیں، انہوں نے اور کل بنا لیے ہیں۔ ڈگری، نوکری، شادی، گھر، کل میں جینا اب عادت ہے۔ یاد رکھو، تمہارا آج جیسا بھی ہو، جتنا بھی شاندار ہو، تم کل میں جینے کی عادت بنا چکے ہو، اس کو نہیں چھوڑو گے، کیونکہ انا کو جینا ہی کل میں آتا ہے۔ اب یہ کل گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا کل، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ انا کو سب سے زیادہ نفرت ہے اس پل میں جینے سے۔ برسوں جس نوکری کے لیے ترستے ہو، تڑپتے ہو، وہ مل جاتی ہے تو پھر کیا تم مطمئن ہو جاتے ہو؟ نہیں، پھر تم پروموشنیں ڈھونڈتے ہو، کچھ اور جو ہے وہ نہیں۔ یہ پل کیسا ہے یہ اہم نہیں ہے، وہ پل کیسا ہوگا یہ تمہارے لیے اہم ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس کل کے آنے کے تم اتنے خواہش مند ہوتے ہو، جب وہی کل آتا ہے تو تم غائب ہو جاتے ہو، تو تم وہاں نہیں ہوتے، کیونکہ تم کو تو کل میں ہی جینے کا ڈھنگ آ گیا ہے۔ تم نے تو کل میں جینا عادت بنا لیا ہے۔ جیسے سراب ہوتا ہے صحرا میں، انا اور انسانی دماغ بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ ریت کا صحرا ہے، اس میں پانی نظر آتا ہے، تم چلتے ہو، وہاں پہنچتے ہو، اور وہاں جا کر یہ راز کھلتا ہے کہ پانی تھا ہی نہیں، ریت تھی، سراب تھا۔ پانی تو وہ دور آگے ہے، تم پھر چل پڑتے ہو۔ سوچو، کیا اس طرح کبھی پانی تک کوئی پہنچ پایا ہے؟ کیا تم پہنچ جاؤ گے؟ تم یاد کرو اپنے بچپن سے اب تک گزری ساری زندگی کو، کیا کیا نہ تھا جو تم نے کل میں چاہا تھا، اور جب وہ کل ان سب چیزوں کے ساتھ وہاں آیا تو تم وہاں تھے ہی نہ۔ تم لوگوں کا حال اس شخص کا سا ہے کہ جس کی آنکھ کے ساتھ مسئلہ ہو اور وہ دور کی ہی چیز بس دیکھ پاتا ہو، اور جب اس چیز کے قریب پہنچے تو وہ چیز اسے نظر آنا ہی بند ہو جائے۔ تم چھوٹے بچے ہوتے ہو تو تمہیں ایک ہی غم ہوتا ہے، کب بڑا ہوں گا اور اپنے کھلونے خود خرید سکوں گا، لیکن جب تم بڑے ہوتے ہو تو کھلونے نظر ہی نہیں آتے۔ تمہیں فار سائٹڈنس کی بیماری ہے، تم دور ہی کی چیز کو دیکھ سکتے ہو، اور جب دور کی اس چیز تک پہنچتے ہو تو چیز غائب ہو جاتی ہے، تم کسی اور چیز کو دیکھنے لگتے ہو۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہر چیز کے ساتھ تم نے اب تک یہی کیا ہے۔ ہر دفعہ جب تم کھلونے خریدنے کے قابل ہوئے، کھلونے نظر آنا بند ہو گئے۔ تم ساری زندگی دوڑتے ہو، تمہیں تمہاری پسند کے کھلونے ہمیشہ دور نظر آتے ہیں، مگر کبھی رک کر یہ سوال خود سے نہیں کرتے کہ مسئلہ کس کے ساتھ ہے۔ مسئلہ چیز کے ساتھ نہیں ہے، وہ چیز نہیں اڑ جاتی،
बल्कि मसला तुम्हारी आंख के साथ है जो फिक्स्ड है, जो दूर ही देख सकती है। वो 5 फीट से आगे ही देखती है, 5 फीट से पीछे उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। इंसान यूं जी रहा है, हमेशा ब्लाइंड स्पॉट में। इंसान का आज हमेशा अंधेरे में होता है। इस पल से इंसान हमेशा गाफिल होता है, और यही पल वो पल है जिसमें तुम्हारा सारा खजाना है। अना की यही तो बीमारी है। अना कल को देखती है, मगर कल के साथ वो कुछ कर नहीं सकती। तुम कभी सोचते हो कि तुम अपने कल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते? कल के सर दर्द का इस वक्त इलाज नहीं कर सकते। कल का खाना तुम इस वक्त नहीं खा सकते। कल के साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर अना कल को ही देखती है। इस पल के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर इस पल को तुम्हारी अना देख ही नहीं सकती। आज के साथ किया जा सकता है, आज में कुछ किया जा सकता है, मगर आज में आप मौजूद नहीं हैं। और कल में कुछ नहीं किया जा सकता, और आप हमेशा उसी कल में मौजूद हैं। ये शराब की दौड़ पूरी जिंदगी को बेकार कर देती है। जिंदगी को जीने की बजाय तुम दौड़ में लगा देते हो। ये जो आज के इंसान को एम्प्टीनेस फील होती है, खालीपन लगता है, कहीं फुलफिलमेंट नहीं, कहीं कोई भरपूर होने का एहसास नहीं, कहीं कोई भराव नहीं। जो भी पाते हैं फ्रेश नहीं लगता, जो भी पकड़ते हैं फेंकने जैसा हो जाता है। जिसको भी खोज लेते हो उसके ही सारे मानी खो देते हो। फकीर तुम्हें ख्वाहिशों से आजाद करता है। क्यों? ताकि तुम इस दौड़ से रुक कर देखो, जो तुम चाहते हो वो यहाँ है। तुमने नजर टिकाई हुई है दूर, जिंदगी यहाँ है। फकीर ख्वाहिशों से आजाद करता है ताकि तुम कल के पीछे अंधाधुंध दौड़ने से रुक जाओ। और ये भी बताऊं कि फकीर कहता नहीं है कि ख्वाहिशों को तर्क कर दो। इस बात को समझो, क्योंकि अगर कोई फकीर है, कोई सच्चा मुर्शिद है, गुरु है, वो तुम्हें कहता है कि ख्वाहिशें छोड़ दो, और आगे से तुम सवाल करो किस लिए, फॉर व्हाट, और फिर वो कहे कि जन्नत के लिए, निजात के लिए, निर्वाण के लिए, इनलाइटनमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप फिर सवाल कर सकते हो कि ये भी तो फिर ख्वाहिश हुई। तुम हमें एक ख्वाहिश छोड़कर दूसरी ख्वाहिश ही पकड़ने का कह रहे हो। नहीं, सच्चा गुरु ये कहता ही नहीं है कि ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कहेगा तो उसे लाजमन तुम्हें कोई और ख्वाहिश पकड़ाना होगी। यही सारे रिवाजी मजहबी करते हैं। वो कहते हैं ये फजूल की ख्वाहिश के पीछे पड़े हो, इधर आओ हम तुम्हें बताते हैं कि क्या ख्वाहिशें हैं करने वाली, क्या है पाने के काबिल। गौर से देखना तो ये रिवाजी मजहबी तुम्हारे दुनियादारों से ज्यादा कैलकुलेटिव हैं, ज्यादा हिसाब किताब वाले हैं। वो कहते हैं कि तुम तो बेकार से घर की ख्वाहिश में सड़े जा रहे हो, आओ हम तुम्हें बताएं जन्नत में महल कैसे खड़ा होता है। ख्वाहिश छोड़ने का जो कहेगा वो नई ख्वाहिश को जरूर पकड़ाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम्हारी अना कैसे ऑपरेट होती है। वो भी जानता है कि कल तुम्हारे लिए आज से हमेशा ज्यादा अहम है। वो कल से नहीं हटाता, कल की ख्वाहिश को रिप्लेस कर देता है। सूफी ये नहीं करता। सूफी बस बता देता है कि ख्वाहिश ये है, ये ऐसे काम करती है। तुम्हारी ही जिंदगियों से तुम्हें दिखा देता है कि देखो ये तुम्हारी ख्वाहिश है जो गुजरे कल में तुमने की थी, अब ये तुम्हारे लिए कितनी कोई अहम है। वो ख्वाहिश का सच बताता है। वो छोड़ने और पकड़ने की बात ही नहीं करता, क्योंकि छोड़ना और पकड़ना अना का तकाजा है। जानना, सच जानना, हतमी हक जानना, ये तुम्हारी रूह की दुनिया है, ये तुम्हारी हस्ती का तकाजा है। कभी देखा है दुनिया का दौड़ना और फकीर का सहराओं में भटकना? दोनों चल रहे हैं, दोनों भाग ही रहे हैं, लेकिन एक कुछ पाना चाहता है और दूसरे ने कुछ भी नहीं पाना, मगर उस पाने के इरादे से दौड़ने वाले से भी मुश्किल रास्ता वो दौड़ रहा है। दुनियादार तो एयर कंडीशनड ऑफिस से घर की दौड़ लगाता है, मगर सूफी तो कभी सहरा में जल रहा है, कभी जंगल में भटक रहा है, कभी हिमालय की गारों में तन्हाइयां झेल रहा है, और कुछ पाना भी उसने नहीं है। वो बस जानना चाहता है।
रूह जानना चाहती है, अना पाना चाहती है। और मज़े की बात यह है कि पाने में तस्कीन ढूंढती दुनिया सब कुछ पाकर भी तस्कीन नहीं पा पाती, और कुछ ना पाने को चलने वाला फकीर सकून, पीस, जिंदगी और खुदा को पा लेता है। कभी इस राज पर तुम गौर क्यों नहीं करते? मुर्शिद ख्वाहिश की नेचर खोल कर बता देता है, छोड़ने की बात नहीं करता। वो बस ये कह देता है कि ये दीवार है, इससे निकलोगे तो सर टूटेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अपना सर न तोड़ो, क्योंकि इससे सवालों का सिलसिला जन्म लेता है और कुछ नहीं होता। आप कहोगे क्यों सर न तोड़ूं? वो ये भी नहीं कहेगा कि इस दीवार से ना निकलो, क्योंकि आप कह सकते हो कि क्यों ना निकलूं। ध्यान रहे कि सूफी मुर्शिद आपको कोई पॉजिटिव डिजायर नहीं देता कि इसके लिए ऐसा मत करो। वो बस इतना ही बताएगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सूफी बस इतना कहता है कि डू दिस एंड दिस फॉलोज। किसी सच्चे मुर्शिद से कभी पूछना कि हम क्या करें, वो कभी नहीं कहेगा कि ये करो ये ना करो। वो कहेगा ये तुम मुझसे मत पूछो, तुम मुझसे ये पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुमको बता दूंगा कि तुम ये करोगे तो ये होगा। इससे ज्यादा कभी मुर्शिद नहीं कहता। मुर्शिद कहता है कि मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूं, दीवार से निकलोगे सर टूटेगा, और दरवाजे से निकलोगे तो बिना सर तुड़वाए निकल जाओगे। ये तुम्हारी चॉइस है, दीवार से निकलो या दरवाजे से निकलो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम दीवार से मत निकलो। फर्क समझो। एक तो सूरत यह है कि तुमसे साफ साफ कहा जाए कि ये करो, लेकिन जब भी कोई आपको पॉजिटिवली कहेगा कि डू दिस, तो आपका फौरी रिएक्शन एक ही होगा कि क्यों, और क्यों के जवाब में कुछ भी कहा जाए तो क्यों फिर भी बच जाएगा। क्यों कभी कहीं नहीं जाता, क्योंकि फिर हर जवाब पर कहा जा सकता है कि ये क्यों। फकीर बस इतना कह देता है कि ये करोगे तो ये होगा। ख्वाहिश के पीछे भागोगे तो दुखी होकर रहोगे, छत से कूदोगे तो टांगें टूटेंगी। ख्वाहिश में दुख है, ये नेचर का इतना ही पक्का कानून है जैसे कशिश शकल का कानून। फकीर मुर्शिद ये नहीं कहता कि ख्वाहिशों में ना पड़ना, कि इससे तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि फिर आप कहोगे कि ठीक है हमें सुख चाहिए। ये फिर ख्वाहिश बन गई। कैसे मिलेगा सुख ये बताओ? ख्वाहिशों का फिर नया सिलसिला जुड़ जाएगा। ख्वाहिश असल में दिमाग का वो डिल्यूजन है, शराब है, भरम है, धोखा है, जिससे वो आपकी हस्ती पर अपना कंट्रोल बनाती है। इसीलिए मुर्शिद कभी तुम्हें किसी ख्वाहिश को छोड़ने का मौका नहीं देता। मुर्शिद सिर्फ अनजाने को जाना कर देता है और फैसला मुकम्मल तौर पर तुम पर छोड़ देता है।